So last day we studied the Indian money market. So in the money market we studied there are three types of banks operating. So first bank is central bank, that is Reserve Bank of India. Second are the commercial banks, which are all the banks that you generally see like State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, all the banks that we see that are they are called commercial banks, and they are also called scheduled commercial banks. Okay, their proper name is scheduled commercial banks. Now why this word scheduled? The government maintains a list of the commercial banks. Okay, the RBI, it maintains a list. That list is called a schedule. ओके, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है शेड्यूल, जो लिस्ट होते हैं तरह तरह के, उसी तरह आरबीआई जो है वो एक शेड्यूल, एक लिस्ट बना के रखती है बैंक्स का, जो भी बैंक्स जो काम कर रहे हैं देश में। तो तो उस शेड्यूल में नाम होता है, इसलिए इन बैंक्स को हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ओके, and certain special rules and regulations apply to those banks. The rules and regulations formed by RBI, they apply to those banks, so they are called as scheduled commercial banks. That is the proper name. In short, we can call them commercial banks. So all the banks that generally we see like State Bank, PNB, HDFC, ICICI, HS, all the general banks that you see, they are all scheduled commercial banks. And then the third set of bank, that is the cooperative banks. We see some cooperative banks like यहाँ आप देखेंगे कि नॉर्थ बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक. So some rural banks, mostly they are the cooperative banks. So this is the money market, जहां हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए हम मनी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मुझे कोई सपोज करिए कि आई हैव टू मेक अ हाउस, सो आई टेक अ लोन फॉर 2 years, 3 years और 5 years. आई विद इन दैट टाइम आई रीपे द लोन. मैं उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल में चुका देता हूँ या 10 साल में चुका देता हूँ. तो इस तरह का जो लोन लिया गया होता है, दैट इज कॉल्ड मनी, एंड दैट इज फ्रॉम द बैंक्स. सो वी कॉल देम इंडियन मनी मार्केट. ओके, मनी का मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म. शॉर्ट टर्म में आता है कि विद इन 1 year और 2 year, एंड मिड टर्म में कहते हैं कि 5 years, 10 years. जब उससे लंबे समय के लिए हम पैसा लेते हैं, तो डेफिनेटली जब हम लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं, दैट इज फॉर सम प्रोडक्शन पर्पस जनरली. ठीक है, पर्सनल लोन्स जो हम लेते हैं, देखिए आप कई बार सुनते हैं होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, दिस लोन, दैट लोन, एजुकेशन लोन. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक. तो देयर पीरियड इज जनरली 1 year to 5 years. मैक्सिमम होम लोन वगैरह होते हैं तो 5 years से ज़्यादा भी होते हैं. तो they are mid-term loans. So short-term and mid-term loans, they are given by the banks, and they are thus called the Indian money market. Now for a loans longer period than that, that is more than 10 years, generally they are taken for the production purposes. Like when someone is starting a business, someone is starting some factory, so there are such loans which are to be repaid over 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, like that. Such money is to be used in the form of capital. जो ऐसा पैसा लिया जाता है, जैसे विजय माल्या लेके गए हुए हैं, अंबानी लिए हुए हैं, अडानी, बहुत सारे सब लोग लिए हुए हैं, जितना ही बिजनेसमैन है सब लोन लेके काम कर रहे हैं. सो दे आर टेकिंग द लोन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो ले लिया एसबीआई से 500 करोड़, कोई ले लिया 1000 करोड़ पीएनबी से.
तो ये पैसा को तुरंत नहीं चुकाना होता है, बल्कि इट इज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मे बी 10 years, मे बी 15, 20, 30 years और 50. Such loans, so they are used for the capital. So we call it capital, and the market in which we deal with such money, we call that Indian capital market. So we can see here that Indian capital market provides long term capital. First thing clear, that Indian capital market provides long term capital. Long term capital. Now long term capital is demanded for implementation of public construction activities and large scale industries. अब कोई 100 करोड़ 500 करोड़ किस ले लेगा, या 1000 करोड़ किस ले लेगा? कोई घर नहीं बनाता इतने पैसे का है, कोई दुकान और शोरूम नहीं इतने पैसे का. तो दिस सच मनी इज यूज्ड, जैसे कोई बिजनेस, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, ओके, या कई बार सरकार भी लोन लेती है, सरकार भी कैपिटल मार्केट में लोन लेती है. और सरकार को कोई पुल बनाना है, जैसे अब मेट्रो का काम चल रहा है, तो बिहार सरकार थोड़े अपना पैसा सब इसमें लगा रही हो, इतना पैसा थोड़े है बिहार सरकार के पास फालतू. तो वो लोन लेके काम करते हैं, तो वो सरकार भी लोन लेती है. तो ये जैसे सरकार ने लिया हो, मान लीजिए कहीं से 1000 करोड़ 10,000 करोड़ लिया हो, तो वो लोन कोई भी ले सकता है. लोन कोई प्राइवेट पर्सन भी ले सकता है, कोई बिजनेस, कोई कंपनी भी ले सकता है, या गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक द लोन. सो दैट इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. जैसे कहीं रोड बनाना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं मेट्रो बनाना है, कहीं रेलवे लाइन डालना है, कहीं एयरपोर्ट बनाना है, कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनानी है, गवर्नमेंट के फ्लैट्स बनाने हैं. दैट इज फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. कोई बिजनेसमैन है जिसको कोई बड़ा फैक्ट्री डालना है, कोई नया प्लांट डालना है मैन्युफैक्चरिंग का. सो फॉर सच पर्पजेज दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड और कैपिटल इज प्रोवाइडेड. नाउ दिस इज क्लासिफाइड एज फॉलोज. ये जो कैपिटल मार्केट है हमारा, ये इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है. वी कैन सी दैट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. Indian capital market, it is distributed among, first is the primary market, then next is secondary market, third is development of financial institutions, and fourth is non-banking financial companies. तो इंडियन कैपिटल मार्केट में ये 4 तरह के एक्टिविटी में बटा हुआ है. फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, देन सेकेंडरी मार्केट, देन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ठीक है क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. यस, मैंने बताया ना कि जैसे अभी ये सब है, आपका पेटीएम है, गूगल पे है, और बहुत सारा ऑनलाइन ये सब आते रहता है. दे आर ऑल नॉन बैंकिंग. जैसे पेमेंट्स बैंक सब ने अपना शुरू कर दिया है. एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो का, एयरटेल कहता है कि हमारे से वो करिए, अकाउंट मेंटेन करिए. पेटीएम ने शुरुआत किया था इसका, सबसे पहले इंडिया में पेटीएम ने शुरू किया था, और पेटीएम के बाद फिर सब कंपनियों ने अपना अपना शुरू कर दिया. ठीक है, फिर गूगल पे, फ़ोन पे, और इस तरह के और बहुत सारे हैं. सो दीज आर ऑल नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज. दे आर डीलिंग इन मनी, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी like ordinary banks. So they are called non banking financial companies. हाँ, पेटीएम वगैरह जो भी है. वित्त मनी को हम कहते हैं धन, और फाइनेंस को कहते हैं वित्त. ठीक है, तो जब अपना धन नहीं होता है तो वो वित्त कहा जाता है.
जब आप अपना मनी यूज करते हैं दैट इज मनी. When you are taking money from someone, it is called finance. Okay. So here the Indian capital market is divided into 4 types of categories. First is the primary market, then secondary market, then development of financial institutions, and then non-banking financial companies. देखिए Indian capital market is basically dependent on these 4 financial institutions. तो इन चारों पर ही हमारा कैपिटल मार्केट काम करता है. All national level development activities such as roads, railways, hospitals, educational जैसे कॉलेज वगैरह बनता है, स्कूल बनते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर प्लांट वगैरह बनना है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मशीन्स, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर आर परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज लॉन्ग टर्म कैपिटल. तो ये जितना भी मैंने नाम लिए, अब सड़क बनानी है, कहीं सड़क बनानी है उसमें 50 करोड़, या सरकार कई जगह सड़क बना रही है जिसका टोटल बजट है मान लीजिए 500 करोड़, तो वो किसी से गवर्नमेंट से मान लीजिए बैंक से लोन ले लेती है 500 करोड़, तो वो 500 करोड़ जो है वो 10 साल 15 साल 20 साल में रिटर्न करती है. इसी तरह रोड है, रेलवे है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाना है, या कोई बड़ा इंडस्ट्री बनाना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट के द्वारा करने वाला हो, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे जो लोन या कैपिटल यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम दिस इंडियन कैपिटल मार्केट. ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है. एज ए कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द बिल्डिंग ऑफ द नेशन. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब जितने भी सड़कें बन रही हैं, पुल, अब जैसे मेट्रो बन रहा है पटना में, डेवलपमेंट काम हो रहा है, इसमें कितना इसका बजट होगा, हजारों करोड़ का बजट होगा. तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड से लगा रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, बहुत सारा पैसा, कुछ लोन होगा, कुछ प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनीज इसमें पैसा लगा रही हैं. तो इस तरह से ये काम जो है हो रहा है. तो इस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, देश का विकास इस तरह से होता है. नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. किसी भी देश की ये रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है जो हमें सपोर्ट करता है, उसी तरह जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी देश के बैकबोन की तरह होता है. Organized financial institutions are essential for economic development of a country. कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर नियम कानून के तहत जो काम करते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they are very important for the development of any country. It is a matter of satisfaction that in Mumbai, the financial capital of India, there is an organized capital market through which finance is arranged for industrial sector. तो हमारे देश का फिनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है? मुंबई. हमारे देश का कैपिटल है दैट इज दिल्ली, बट द फिनेंशियल कैपिटल यानी कि जहां फिनेंस का सारा काम होता है जहां से, दैट इज मुंबई. और मुंबई में जो हमारा कैपिटल मार्केट है, यानी कि जहां से शेयर, स्टॉक ये सब डील होता है, दैट इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बेस्ड इन मुंबई. ठीक है, तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट थ्रू विच फिनेंस इज अरेंज्ड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर. हम जो भी शेयर्स में डील करते हैं, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर हो, स्टॉक हो, डिबेंचर हो, कई तरह के ये होते हैं, बॉन्ड है, तो इनसे हम क्या करते हैं? कंपनियों के शेयर खरीदते हैं. और जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली आप कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो
ये जो है हमारा हमारा जो कैपिटल मार्केट है इंडिया का, वो मेनली है मुंबई में, जो कि कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एक और है जो हमारा है, एक तो हाँ नहीं सॉरी, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिल्ली में, और बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिल्ली में है, और हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं जो बॉम्बे में। ये दो हमारा देश का मेन स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैपिटल market, India is less affected by ongoing worldwide economic depression at present। तो जिस समय नोट्स बने हैं पहले, उस समय वर्ल्ड वाइड मैंने बताया था कि 2007 से जो एक मंदी चल रही थी दुनिया में, तो उसी की बात कही जा रही है, और उससे इंडिया ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। मैंने बताया था आपको, क्योंकि इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा लोन लेने का कल्चर नहीं है। सिर्फ जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लेते हैं ज़्यादा, या लोग जो है अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए लोन लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लोन लेने का हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। इस वजह से हम बच गए थे इस दुनिया के आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन से। तो वही कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट, इंडिया इज लेस अफेक्टेड बाय ऑन गोइंग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एट प्रेजेंट, और जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन इंडिया उसमें बेहतर हालत में है बाकी उससे। The main sector of the capital market is known as दलाल स्ट्रीट। तो ये जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये जिस जगह पर है उसको हम दलाल स्ट्रीट कहते हैं। दलाल स्ट्रीट इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक्स के, शेयर्स के, वो वहाँ पर घूमते काम करते रहते थे, घूमते रहते थे, इसलिए उस गली को, उस एरिया को दलाल स्ट्रीट कहने लगे। दलाल जो है ब्रोकर को कहते हैं। तो हाँ है, ठीक है, बॉम्बे में है। तो उस जगह को धीरे धीरे दलाल स्ट्रीट, बहुत पहले दलाल स्ट्रीट कहते थे, क्योंकि जब छोटे लेवल पर, जब बहुत आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो लोग वहाँ पर सड़क पर घूम घूम के अपना लोगों से खरीद बिक्री करते थे। तो दलाल स्ट्रीट उसको धीरे धीरे कहा जाने लगा, और फिर वहाँ प्रॉपर फिर स्टॉक एक्सचेंज बन गया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फिर वो प्रॉपर ऑफिशियल वे में सब काम होने लग गया। तो उसको हम आज भी दलाल स्ट्रीट ही कहते हैं। तो दलाल स्ट्रीट का मैंने आपको मतलब समझा दिया क्यों कहते हैं। तो वहीं से हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और वहाँ पूरे इंडिया का उससे स्टॉक्स और शेयर का मार्केट चलता है, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। एक बॉम्बे में है, फिर दिल्ली में है, और फिर हर स्टेट कैपिटल, जैसे पटना में भी है पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज, हर स्टेट कैपिटल में भी अपना अपना उस स्टेट का जो है ब्रांच है स्टॉक एक्सचेंज का। सो वही बताया जा रहा है कि द मेन सेक्टर ऑफ द कैपिटल मार्केट इज नोन एज दलाल स्ट्रीट। बिहार इज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी एंड ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बिहार कह रहा है कि थोड़ा पिछड़ा है, इसलिए क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन यहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। जैसे पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग डील नहीं करते हैं। जो लोग हैं बिहार के लिए, वो डायरेक्टली वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं, पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से डील नहीं करते हैं। या जो बिहार के कंपनीज वगैरह हैं, जो कि वो सब जो बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं। तो पटना का जो पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पिछड़े हुए भी हैं। तो वही कहा रहा है कि बिहार इज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी एंड ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
banks advance low percentage of money deposited by people of Bihar as loan to the agricultural and industrial sector। तो बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो लोगों के जो है बचत से ही। देखिए बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, मैंने बताया था आपको कि कोई भी बैंक जब स्टार्ट करता है वो कुछ अपना कैपिटल लेता है, कुछ उधार लेके काम करता है, फिर लोगों से वो जमा लेता है, जो हम अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं, पैसा जमा करते हैं सेविंग्स के रूप में। और जो लोगों का जमा पैसा रहता है उसी को फिर उसी पैसे को वो लोगों को उससे लोन भी देता है। तो जो हमने जमा किया उसी से वो दूसरों को लोन दिया, और हमने जमा किया तो हमको कुछ इंटरेस्ट देता है, और जिसने लोन लिया उससे कुछ इंटरेस्ट लेता है। बीच का जो फायदा होता है वही बैंक का अपना फायदा होता है। तो इसीलिए देखिए कि सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट मान लीजिए वो देता है 6% 7%, लोन देगा वो कम से कम 10% 12%। बीच का जो, अब मान लीजिए मैंने 1 लाख जमा किया तो मुझे वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है, किसी दूसरे को वो 1 लाख लोन दिया उस पर उससे 12% ले रहा है, बीच का जो डिफरेंस हुआ 5%, वो बैंक का फायदा है, उससे बैंक चलता है। तो इस तरह बैंक लोगों के ही जमा पैसों पर, डिपॉजिट कहते हैं उसे, डिपॉजिट्स पर काम करता है। कुछ अपना फिनेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर वो लोगों का ही, जो पैसा लोग हम जमा किए उस पैसे को उसने रखा और उससे फिर जो लोन लिया उसको लोन दिया। तो इस तरह से डिपॉजिट एंड लोन्स चलते हैं। तो लोगों, अब हमारे यहाँ क्या है कल्चर कि लोग अपने पास पैसा बैंक में, सबका इतना पहले नहीं था कि बैंक में, तो जब से मोदी जी ने जनधन खुलवा दिया सब आदमी का, तो हर आदमी बैंक, नहीं तो पहले क्या है, लोग बैंक जो है, जो बिजनेस पर्पस कमर्शियल पर्पस से है, वही लोग बैंक अकाउंट वगैरह ज़्यादा डील करते थे, नहीं तो लोग अपने पास कैश रखा जो है मेंटेन। तो जब बैंक में जमा नहीं करेंगे तो फिर बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा बैंक के पास। तो इस कारण बिहार में जो है हमारे थोड़ा फाइनेंस की दिक्कत है, कमी है, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन दे सकें और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी लोन दे सकें। तो यही कहा जा रहा है कि बैंक्स एडवांस लो परसेंटेज ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय पीपल ऑफ बिहार एज लोन टू द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। So because of the absence of healthy financial institutions, economic development of Bihar is not possible at a high speed। तो कहा जा रहा है कि चूंकि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कमी है, इसलिए हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है, फास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको फास्ट करना है तो उसके लिए आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, because of continuous effort of Bihar government, पानी दे दीजिए, because of the continuous efforts of Bihar government, limit of investment by banks for agriculture and industry has increased। ठीक है, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से बिहार सरकार के लगातार प्रयास के कारण जो बैंक जो हैं, जो पैसा प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसका लिमिट बढ़ा है। सरकार जब लगातार प्रयास कर रही है, बैंकों को कहा जा रहा है, तरह तरह का उसमें आपको पैकेज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा बैंकों के लिए कि आप प्रोवाइड करिए लोन, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा लोन मिल पाया है। बट इवन नाउ दिस इज नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन अभी भी जो मिल रहा है वो कम पड़ रहा है काफ़ी, जितना हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अभी भी देखिए लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं बिजनेस को अपने, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है आसानी से, क्योंकि अभी भी
लोन पैसों की कमी है बैंक के पास, जब बैंक के पास रहेगा नहीं तो देगा कहाँ से। और रहता भी है तो वहाँ कई तरह का बैंक को डर होता है पैसा फंसने का, डूबने का, इस वजह से बैंक देना नहीं चाहते। कई बार होता है कि सरकार उनको कहती है कि भाई हम गारंटी देते हैं, अगर ये नहीं चुका पाएगा तो हम देंगे, तब उनके गारंटी पर बैंक लोन देते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी भी सब लोग सरकार तक अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, तो वो बिना लोन के काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक, देखिए, बैंक खोजता है गारंटी। कोई आपको पैसा देता है तो उसको डर होता है कि मेरा लौटाएगा कि नहीं, डूब तो नहीं जाएगा पैसा। तो सोच समझ के आदमी लोन देता है। तो जो प्राइवेट पर्सन होते हैं लाइक मनी लेंडर्स, तो वो इसीलिए उनका रिस्क बहुत होता है, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लोन देंगे, लोन देने की कमी नहीं है, इंटरेस्ट वो ज़्यादा लेते हैं। जैसे ये सब कंपनीज हैं, टाटा, बिरला या और ICICI वगैरह जितने भी कंपनीज हैं, ये लोन देते हैं, मिनिमम उस पर चार्ज करते हैं 25%। आज पर्सनल लोन्स या स्मॉल लोन्स जो होते हैं उनका मिनिमम एक स्टैंडर्ड हो गया है 25%, एग्जैक्टली कहिएगा तो 24%। 24% मिनिमम इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। तो सोचिए कि मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट बैंक क्या देती है पैसा जमा करने पे, 7% या 6%। और लोन का जो मिनिमम रेट है, मैं पर्सनल लोन और स्मॉल लोन्स की बात कर रहा हूँ, यानी मैक्सिमम 1-8 लाख तक, उससे कम है, उन पर मिनिमम है 24%। सोचिए कि अगर एक आदमी 1000 रुपया लोन लेता है तो उस पर उसको 250 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस वजह से लोन काफ़ी खर्चीला, महंगा हो जाता है और चुकाने में कस्टमर की हालत ख़राब होती है। इसीलिए सरकार द्वारा कोशिश की जाती है कि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके, उससे लोगों को भी फायदा होगा कि भाई इतना महंगा लोन नहीं लेना पड़ेगा। और जब लोन लेंगे लोग तो अपना काम करेंगे, तो बिजनेस डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा, तो राज्य का डेवलपमेंट होगा। ना सो यहाँ जो हमने देखा, कैपिटल मार्केट 4 तरह के एक्टिविटीज़ में है बटा हुआ। प्राइमरी मार्केट, तो यहाँ प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट हो गया जैसे ये सब हो गया पाटलिपुत्रा स्टॉक एक्सचेंज, या और कहीं कहीं के स्टॉक एक्सचेंज है, कोचीन में है, कोची स्टॉक, हर जगह का आप हम्म। और
थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे इसमें आता है कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपना काम बढ़ा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखते हैं ये सब, जैसे एक है IIFL, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, एक कंपनी है सरकारी, IIFL, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। ये क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। कहीं बिल्डिंग बनाना है, मतलब कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई पुल बनाना है, कोई रोड बनाना है, कहीं पावर प्लांट लगाना है, रेलवे लाइन लगाना है, मेट्रो बनाना है, तो इसमें ऐसे सब लोन पर्पस के लिए लोन IIFL प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के मान लीजिए और इंस्टीट्यूशन कोई सेटअप करना है जो इंडस्ट्रियल पर्पस, कोई खास पर्पस के लिए लोन देती है। मान लीजिए कल को एक स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, इंडियन स्टार्टअप फाइनेंस लिमिटेड, ISFL, जिसका कि काम है कि जो भी लोग स्टार्टअप करें तो उनको फाइनेंस देना। तो कहने का मतलब इस तरह के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो पैसा दिया जाता है लोन के तौर पर, वो इसमें कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? नॉर्मल भाषा में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब नॉर्मल भाषा में, किताबी भाषा में नहीं अगर कहा जाए तो पैसे के लेन देन करने वाली कंपनी। बैंक भी हो सकते हैं उसमें, जैसे अभी देखिए कई सारे उज्जीवन एक चलता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, या बंधन बैंक चलता है, महिला बैंक शुरू हुआ था फिर मर्ज हो गया वो स्टेट बैंक में। बहुत सारे अभी छोटे छोटे बैंक आप देखेंगे चल रहे हैं, वो सब हो गया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको जो पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है उनके काम के लिए। कल को मान लीजिए मैं ही एक बैंक शुरू करना है, पटना बैंक, जो कि पटना के लोगों को उससे लोन वगैरह प्रोवाइड करने का मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं मान लीजिए लोन लेता हूँ किसी से, कहीं से, तो वो एक कहा जाएगा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ गए? जैसे देखिए कितने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। उसी तरह के मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन, या जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेशल है, जैसे मैं नाम दिया ISFL, इंडियन स्टार्टअप फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरह के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट या डेवलप करने के लिए जो लोन वगैरह दिया जाता है वो इसमें आ जाता है। और फाइनल है फिर फोर्थ, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, जो बैंकिंग का काम छोड़ के और किसी तरह का पैसे का डीलिंग करती है। जैसे जितना इसमें आ गया, अभी आप जितना जान रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, और क्या क्या पे था जो भी था, फिर पेटीएम जो शुरुआत किया इस काम का, सबका, जैसे एयरटेल का है पेमेंट्स बैंक, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी सरकारी में भी ऑफिस शुरू हो गया है पोस्ट ऑफिस में, तो उसको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कहते हैं। ये पेमेंट्स बैंक कहे जाते हैं, सिर्फ ये पेमेंट का काम करता है, पेमेंट करने के लिए। तो इसको पेमेंट बैंक कहा जाता है। नहीं, मैं अभी पेमेंट्स बैंक की बात कर रहा हूँ। नॉन बैंकिंग में पेमेंट्स बैंक और कई तरह के आते हैं,
तो जैसे पेमेंट्स बैंक्स जो हैं उनका काम सिर्फ इतना है, वो ऑनलाइन पेमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल, जियो, माई जियो ऐप से किए, चाहे एयरटेल ऐप से किए, हर कंपनी का अपना अपना ऐप है। चाहे एयरटेल से किए, चाहे वीआई से किए, या जिस भी कंपनी का है, तो वो सब कंपनी अपना अपना फिर एक बैंक भी, पेमेंट्स बैंक भी बना रखी है। कहता है मनी ऐड कर लीजिए इसमें तो इतना डिस्काउंट देंगे, हमारे ऐप से रिचार्ज करिए, जियो से करिए या अमेजोन से करिए। फायदा क्या होता है? मैंने बताया हर जगह फायदा बस परसेंटेज पर है, ठीक है, परसेंटेज पर है। वो आपसे कुछ मिनिमम परसेंटेज चार्ज करती है, और जहाँ से लोन देती है उसको उससे कम परसेंटेज देना होता है। बीच का जो फायदा होता है वो इनका फायदा होता है। दूसरी बात है कि अपना कस्टमर भी बढ़ा। देखिए, पैसा जो भी चला रहा है वो परसेंटेज पर ही चला रहा है। जो भी पैसे का काम कर रहा है वो परसेंटेज पर ही काम कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ परसेंट वो ले रहा है और कुछ परसेंट दे रहा है। बैंक भी जो है वो परसेंटेज पर ही काम करते हैं। मैंने बताया बैंक भी कहीं से लोन लेते हैं, बैंक अपना पैसा थोड़े लगाता है। अब स्टेट बैंक जो पैसा प्रोवाइड करता है लोगों को, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो स्टेट बैंक का कोई ओनर थोड़े है कि जिसके घर से पैसा आता है या मोदी जी देते हैं। वो पैसा भी कहीं से लोन लिया जाता है या लोगों का पैसा होता है। तो आप सोचिए कि लोगों का भी पैसा जो लोग जमा कर रहे हैं, तो लोग उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तभी तो जमा कर रहे हैं, नहीं तो क्यों जमा करेंगे? लोग भी 6% 7% इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो बैंक को मिनिमम 6% 7% तो लोगों को देना ही पड़ रहा है। या कहीं और से वो अपना लोन लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, तो उस पर उनको कुछ कम पड़ता है, 4% के आसपास पर मिलता है, 3% 4% वो पढ़ेंगे आप। आरबीआई समय समय पर अपना रेट चेंज करता है। उसको पीएलआर कहा जाता है, प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, या रेपो रेट कहते हैं। पढ़ेंगे आगे या हो सकता आएगा। तो पैसे का काम हर जगह परसेंटेज पर, किसी से लिया उसको कुछ दिया, जिसको दिया उससे कुछ लिया, बीच का जो डिफरेंस है, जो फायदा है, वो हमारा फायदा है। तो इसी तरह ये जो पेमेंट्स बैंक भी करते हैं, इनको भी परसेंटेज का अपना कमीशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो अमेज़न हो गया, अमेज़न के थ्रू अब देखिए सारा पेमेंट अमेज़न कहेगा कर लीजिए हमारे से, जैसे मैं अमेज़न से ही करता हूँ कि आप चाहे कहीं मोबाइल रिचार्ज करना है, कोई डीटीएच रिचार्ज करना है, कहीं कोई पेमेंट करना है, ठीक है, कोई जो भी चीज़, हर तरह का इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, कहीं पंप पर, पेट्रोल पंप पर पेमेंट करना है, गैस ले रहे हैं उसका पेमेंट करना है, कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका पेमेंट करना है, अमेज़न कहेगा कि आओ हमसे कर लो, फ़ोन पे कहेगा कि आओ हमसे ही कर लो, गूगल पे कहेगा कि आओ हमसे कर लो, और फिर तरह तरह के जो है वो अपना शुरू कर दिए हैं सब। तो ये जो है ऑनलाइन पेमेंट करने वाले जो है, तो इस तरह के ऑनलाइन पेमेंट करने वाले बहुत से, तो उसको पेमेंट बैंक कहा जाता है, पेमेंट्स बैंक। उसके अलावा भी कई तरह की जैसे कंपनीज हैं, ऐप के माध्यम से, आजकल हर चीज़ ऐप के माध्यम से होने लग गया, तो देखिए वो लोन वगैरह भी देते हैं ऐप के माध्यम से, या वो लोन देने का जैसे बजाज फाइनेंस है,
एक DMI फिनेंस है, बहुत तरह की फिनेंस कंपनीज है, टाटा कैपिटल है, ICICI, ये है ICICI लोम्बार्ड, सब बैंक का अलग अलग नाम है। तो वो फिनेंस यानी लोन प्रोवाइड या फिनेंस करने का काम करती है। तो इनको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। तो चलिए आप समझ गए इंडियन कैपिटल मार्केट। अब हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट लेवल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। जो स्टेट लेवल पर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे राज्य में, उनको देखेंगे। वी नो दैट, देखिए एक है सेबी, जो हम स्टॉक्स और शेयर ये सब का डीलिंग करते हैं, उसकी देखरेख जो करता है डायरेक्टली, उस संस्था का नाम है सेबी। जैसे बैंकिंग का देखभाल कौन करता है? RBI। उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज, ये जो कैपिटल मार्केट है, इसका जो देखरेख करता है डायरेक्टली, वो करता है SEBI, सेबी करते हैं। स्टॉक्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी एक मिनट, सेबी, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो जो है एक्चुअली, जैसे स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, उस तरह सिक्योरिटी भी एक होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज कहते हैं, पढ़िएगा आगे बताएंगे। वो भी शेयर ही की तरह होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, समझ गए? गवर्नमेंट या RBI जो शेयर्स प्रोवाइड करती है उसको सिक्योरिटीज कहते हैं। तो वही है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसको जो इन सब का डीलिंग को, यानी कैपिटल मार्केट का जो कामकाज को देखती है, वो सेबी कहते हैं उसे, शॉर्ट में सेबी। तो चलिए बता रहे थे आपको। अब हम लोग अपने स्टेट लेवल पर देखते हैं। ये सेबी आपको इसलिए बताया कि पेपर में अक्सर न्यूज़ आते रहता है कि सेबी ने ये कहा, सेबी ने ये नियम बनाया, सेबी ने वो काम किया, तो आप उसको समझ सकते हैं। नाउ स्टेट लेवल financial institutions. We know that the economy of Bihar is primarily based on agriculture. ये आपको पढ़ ही रहे थे दिन से आप कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 87% of the population live in villages and around 75% people are directly or indirectly associated with agriculture and related to small scale industries. हमारे राज्य का जो 87% पॉपुलेशन है गांव में रहता है, और टोटल का पॉपुलेशन का 75% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कहिए कि सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कैसे जुड़े हो? एक है कि जो डायरेक्टली खुद लगा हुआ है अपने एग्रीकल्चर में, जैसे कि मेरा ज़मीन है, मैं खेती बाड़ी उसमें कर रहा हूँ, किसानों की बात हो गई। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो खुद नहीं कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, जैसे हम हैं, अपना हमने किसानों को किसी को दे रखा है, वो हमारा खेती करते हैं। या बहुत से लोग हैं जो उससे जुड़ा हुआ जो काम करते हैं, जैसे बीज बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह बेच रहे हैं, बेचने का बहुत, तो ये सब जितना बेचने वगैरह का भी काम होता है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, कोई औजार बेच रहा है, कोई बीज खाद ये सब बेच रहा है, ये सब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए लोग हो गए।
तो 75% जो हमारा पॉपुलेशन है बिहार का, या तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से, या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बाकी लोग जुड़े हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल फार्मर। अब हम किसानों की बात कहें तो किसानों का एक बड़ा हिस्सा जो है, मेजॉरिटी, वो मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। मार्जिनल फार्मर मतलब गरीब किसान, हुज इनकम इज लो एंड सेव मार्जिनली, जो जिनका की कमाई बहुत कम होता है और उनका बचत बहुत ही कम हो पाता है खेतीबाड़ी से। और इसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है उसको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। Thus, they are unable to invest in agriculture and its related industries. तो उनके पास मुश्किल से अपना घर चलाने के लिए पैसा होता है, खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना खा पी लेते हैं, घर चला लेते हैं। तो वो पैसा और कहाँ से लगाएंगे एग्रीकल्चर में? तो हर साल उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पैसा लोन पर लेना पड़ता है, क्योंकि अपना बचत इतना होता नहीं है कि उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकें। जितना वो हर साल उनको उपज होता है और फिर उसको बेचते हैं, तो वो फिर अपना घर का ज़रूरत पूरा करने और ब्याज वगैरह चुकाने में ही पैसा चला जाता है। तो बचत होता नहीं है ज़्यादा कि उसको फिर वो अपना अगले साल के लिए इस्तेमाल कर सके। एंड दैट इज़ वाई लोन और कैपिटल इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस फिनेंस। तो इसीलिए इनको हमेशा लोन की ज़रूरत होती है। तो हर साल ये लोन लेते हैं और उस पर काम करके फिर उसका पैसा जब फसल हो जाती है, बिक जाती है, तो उसका पैसा चुका के जो थोड़ा बहुत बचता है वो अपने घर के लिए रखता है। Now, there are 2 types of financial institutions. There are 2 types of financial institutions. अब हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी पैसे का कारोबार करने वाले जो संस्थाएं हैं, 2 तरह के हैं। वन इज नॉन इंस्टीट्यूशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी एक तरह से कहिए कि ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट जो हो गया वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, सेकंड हो गया ऑर्गेनाइज्ड हो गया। क्रेडिट और लोन कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन। इन्हीं के माध्यम से क्रेडिट या उधार खाता वगैरह काम करता है, मिलता है, लोन मिलता है। एक चार्ट बना दिया गया, इसमें देख सकते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में हो गए जैसे मनी लेंडर्स, बिजनेसमैन और रिलेटिव्स एंड अदर्स। जैसे हम किसी मनी लेंडर जो पैसा ब्याज देने पर काम करते हैं उनसे पैसा लेते हैं, या कोई बिजनेसमैन से हम अपना ज़रूरत के हिसाब से पैसा उधार ले लेते हैं, या कई बार हम अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से भी उधार ले लेते हैं। ये सब जो तरह का उधार लिया गया ये सब आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन इंस्टीट्यूशनल। और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड या जिसको यहाँ इंस्टीट्यूशनल कहा जा रहा है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड एंड अदर्स। इन तरह के बैंकों से अगर हम लोन लेते हैं तो वो कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल लोन या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंस्टीट्यूशनल लोन यानी कोई इंस्टीट्यूशन से, जो कोई संस्था जो कानून के तहत काम करती है। अब मनी लेंडर है वो कोई कानून के तहत काम नहीं करता है, वो जो है कहता है कि भाई देखो मेरा इतना ब्याज मैं लूँगा, तुमको देना है तो दो, और वो जिन शर्तों पर चाहे आपको दे सकता है और जिस तरह से चाहे आपसे वसूल सकता है, उसमें कानून का कोई दखल नहीं होता। तो जितना भी आप ये फिल्में हम लोग देखते थे पुरानी, लाला और सेठ और ठाकुर होते थे जो कि लोन देने काम करते थे, उसके बदले में ज़मीनें लोगों की छीन लेते थे,
वो सब इसी में अनऑर्गेनाइज्ड में है, क्योंकि उनकी मनमानी है। आपको लेना है तो लीजिए, आपकी ज़रूरत है, उनकी शर्त माननी पड़ेगी। तो किसान, गरीब किसान मजबूरी में अपना ज़मीन गिरवी रख के लेता है और फिर ज़मीन उसे छीन लिया जाता है तो मजबूर होता है, क्योंकि वहाँ कोई कानून वहाँ उसके लिए नहीं है, वो कानून के तहत काम नहीं करता है, वो उनका अपना मन ही कानून है। आप उनसे ये नहीं कह सकते हो कि आप इतना ज़्यादा ब्याज क्यों ले रहे हो भाई। भाई मेरा मन है, तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो। तो मनी लेंडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी है। आइए इनको देखते हैं। फर्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इवन टुडे मनी लेंडर्स एडवांसिंग लोन टू द विलेजेस इज द मोस्ट फेमस सोर्स ऑफ एडवांसिंग लोन। आज भी सबसे कॉमन जो है गांव वालों के लिए, किसानों के लिए, कि गांव में जो महाजन है, जो लाला है, वो उनसे पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उनको सरल पड़ता है, जाना हुआ है, अपने गांव का है, कहीं दूर नहीं जाना है, जब ज़रूरत हुआ तब उससे ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, समय भी बचत होता है, उनको जाना हुआ रहता है। तो इवन टुडे मनी लेंडर्स एडवांसिंग लोन टू विलेजर्स इज मोस्ट फेमस सोर्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स। इट इज़ ईजियर टू एक्वायर लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। जैसा मैंने कहा कि आसान होता है, भाई गए बोले अरे भाई लाला इतना पैसों की ज़रूरत है हमें, तो ठीक है ले लो, दे देते हैं। These money lenders and businessmen advance loan to villagers for production and consumption related एक्टिविटीज़। चाहे तो प्रोडक्शन यानी खेतीबाड़ी करने के लिए, चाहे कंजम्पशन, मान लीजिए अपना घर खर्च के लिए कोई चीज़ है, या कोई फंक्शन करना है, शादी ब्याह करना है, इन सब के लिए, तो ज़रूरतों के लिए वो लोन देते हैं। एडवांसिंग ऑफ लोन इज बेस्ड ऑन मॉर्टगेज ऑफ लैंड, ज्वेलरी एंड कॉस्टली आइटम्स। और ये जो लोन दिया जाता है किस आधार पर दिया जाता है? गिरवी के आधार पर। चाहे आप ज़मीन गिरवी रखिए, चाहे आप कोई महंगा ज्वेलरी वगैरह है उसको गिरवी रखिए, चाहे कोई भी और महंगी ऐसी चीज़ है आपके पास जो कीमती चीज़ है उसको तो गिरवी पर ही ये लोग लोन देते हैं, जैसा फिल्मों में आप बहुत देखे होंगे। At the time of failure of repayment of loan, these things are sold for payment of loan. तो जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस समय उस हालात में या तो उसको नीलाम कर दिया जाता है या रख लिया जाता है अपने उसके द्वारा, जैसा उसकी मन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर लोन ऑन द मॉर्टगेज बेसिस इज ऑलवेज हायर दैन गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह गिरवी पर रख के जो लोन दिया जाता है गाँव में या कहीं भी, वो गवर्नमेंट जो तय की होती है उधार देने का रेट, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और जब जो है समय समय पर अगर लोन नहीं चुकाया जाता है तो लोन का चुका पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो बढ़ता चला जाता है और ब्याज भी काफ़ी होता है। Easy availability of loan for villagers is also possible from farmers, relatives and others with and without interest। तो गांव वालों को हो सकता है कि अपने ही परिवार, रिश्तेदारों से या दूसरे किसानों से या और लोगों से भी आसानी से हो सकता है लोन मिल जाए, चाहे वो ब्याज पर हो या बिना ब्याज के। तो non-financial institutions contribute 48% of the total loan given to rural sector। तो रूरल सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोन दिए जाते हैं टोटल, उसका 48% जो है वो इन्हीं मनी लेंडर्स के द्वारा ही, या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अभी हमने पढ़ा इन सब के द्वारा दिया जाता है। यानी लगभग आधा जो है 50% जो लोन है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द्वारा
दिया जाता है, चाहे वो मनी लेंडर्स द्वारा हो, चाहे वो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के द्वारा हो, या और दूसरे किसी लोगों के द्वारा हो। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट। नीचे एक पाई चार्ट बना के जो है दिखाया गया है। इस चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं क्योंकि ये पाई के शेप में होता है। पाई क्या होता है? पाई कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग फ्रूट्स का एक डिश बनाते हैं, स्वीट डिश, उसको पाई कहते हैं। बेसिकली समझिए कि ये जैम टाइप का होता है। तो जैसे वो अपना फ्रूट, एप्पल का एप्पल पाई बनाते हैं, बनाना का बनाना पाई बनाते हैं, ऑरेंज का ऑरेंज पाई बनाते हैं, उसको क्रश करके कुछ मिला के जमा लेते हैं, उस तरह से बनता है। तो पाई, तो इसी तरह गोल वो बोल में कोई बर्तन में रख लेते हैं, तो उसी को देखते हुए उसको और फिर ऊपर से जब खाना होता है तो काट काट के चाकू से खाते हैं, तो उसी आधार पर इसको पाई की तरह दिखता है, गोल सर्कल में होता है, इसलिए पाई चार्ट कहा जाता है। और इसमें हम लोग देखिए देख रहे हैं अब, जैसा कि वो जैसे चाकू से काट दिया गया हो जगह जगह से, उस तरह का देखने में परसेंटेज से हम इसको दिखाते हैं, इसलिए इसको पाई चार्ट कहते हैं। तो इस पाई चार्ट में दिखाया जा रहा है एवरेज स्टैटिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल फैमिलीज, यानी गांव में, गांव के लोग जो उधार लेते हैं तो कहाँ कहाँ से कितना परसेंटेज आता है, यानी टोटल अगर हम पूरे बिहार के गांव में देखें कि लोग कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, तो उसमें जो है ये दिखाया जा रहा है, जो है बहुत क्लियर नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ा है वो मनी लेंडर्स का है, और साफ प्रिंट नहीं है बहुत। कमर्शियल बैंक्स का है, नहीं ठीक से दिख रहा है। सबसे बड़ा है 30%, उसके बाद है 27% कोऑपरेटिव कमिटीज से, क्लियर नहीं है प्रिंट। खैर, अब यहाँ एक स्टोरी एक दिया गया, एक केस स्टडी दिया गया है गांव का। स्टोरी बेस्ड ऑन लोन गिवन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक इसी तरह के अनऑर्गेनाइज्ड से आदमी से लोन लिए के गांव वाले की कहानी दी गई है। देखिए, दीनदयाल इज अ पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर। दीनदयाल नाम का एक खेतीहर मजदूर है जो खेतों में काम करता है, गरीब है। ही हैज़ 2 sons and 3 daughters। उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। हस्बैंड एंड वाइफ वर्क इन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो पति पत्नी दोनों लोग खेतों में काम करते हैं। एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। ही बेयरली अर्न्स हिज लाइवलीहुड फ्रॉम दिस लेबर। वो आदमी जो दीनदयाल है मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है अपनी मेहनत से। He owns only 4 कट्ठा of land on which he used to produce vegetables। उसके पास 4 कट्ठा अपनी ज़मीन है जिस पर कि वो सब्जियां वगैरह उगाता है। One day दीनदयाल्स वाइफ फेल इल सीरियसली। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई गंभीर रूप से। ही बिकेम टायर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इन द विलेज। तो वो गांव में इलाज करके थक गया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। रूरल डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक हर फॉर ट्रीटमेंट टू टाउन। तो जो गांव का डॉक्टर थे वो बोले कि भाई शहर ले जाइए, वहाँ दिखाइए। बट ही वॉज अनएबल टू डू सो बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट मनी। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शहर के हॉस्पिटल में जाके दिखा सके। सो दीनदयाल मॉर्टगेज्ड हिज लैंड टू द फार्मर एंड बोरोड ₹2000
ऑन 10% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने क्या किया कि अब पत्नी को दिखाना है, जमीन अपना खेत जो है गिरवी रख दिया दूसरे किसान के पास, और हर महीने 10% हर महीने के ब्याज पर, यानी कि 2,000 रुपया लिया तो हर महीने वो 200 रुपया उस पर ब्याज देगा। ठीक है, इस पर उसने एक किसान से गिरवी रख के ले लिया पैसा। दीनदयाल बिकेम बैंकरप्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ इन द टाउन। और शहर में जब पत्नी का इलाज कराया तो उसके बाद वो दिवालिया हो गया, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, खर्च हो गया। He could not repay the loan to the farmer for many days। और वो किसान जिससे लोन लिया था उसको चुका नहीं पाया बहुत दिन तक। As a consequence, the farmer got the land transferred in his own name। तो अब ऐसी हालात में पैसा बहुत दिन तक नहीं चुका पा रहा था तो दूसरे किसान ने उसको दिया था, वो उसने जमीन अपने नाम लिखवा ली। Thus, it is clear from this story that though non-financial institutions advance loan to the poor at the time of necessity, the high rate of interest and ill treatment of money lenders, poor laborers are very much exploited। तो इस कहानी से हम देख के समझ सकते हैं कि हालांकि ये जो नॉन ऑफिशियल नॉन इंस्टीट्यूशन यानी अनऑर्गेनाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ज़रूरत के समय लोन तो देते हैं लोगों को, गरीब लोगों को, लेकिन उनका ब्याज इतना हाई होता है, ज़्यादा होता है, और वो गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, उनका ज़मीन हड़पने का कोशिश करते हैं। इससे गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये एक आपको जनरल एक स्टोरी दिखाया गया कि कैसे गांव में एक आदमी लोन के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। नाउ तो ये तो था अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन इंस्टीट्यूशनल फिनेंस। अब हो गया इंस्टीट्यूशनल फिनेंस। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फिनेंस। अब इंस्टीट्यूशनल फिनेंस के हम सोर्सेज यानी कि जो बैंकों वगैरह से तरह तरह के संस्थाओं से लोन लिया जाता है उसके बारे में हम एक बड़ा टॉपिक। चलिए हट जाते हैं आजकल बहुत जल्दी। देखिए, sources of institutional finance। These are the sources of institutional finance। Number 1, cooperative bank। In our state there is a 3-tier cooperative credit system by cooperative bank। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये हमारे राज्य में 3 लेवल पर इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये काम करता है। ए जो गांव के स्तर पर जो होते हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट कमेटी, हर गांव में होता है। तो गांव के स्तर पर जो होता है इनका ऑफिस या उसको कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहते हैं या प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट कमेटी कहते हैं, ये गांव पर होता है। फिर है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फिर जिला स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और फिर होता है राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी भी नाम होता है, बैंक भी होता है। तो 3 लेवल पर काम करते हैं ये, गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। इन बिहार शॉर्ट टर्म
medium term and long term credit is provided to farmer through the medium of कोऑपरेटिव बैंक्स। बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, इसी टॉपिक तक रखेंगे आज, अभिषेक ज़्यादा नहीं कराता है ऐसे। तो बिहार में जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिट है किसानों को, वो कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि जो गांव में सहकारी बैंक होते हैं उन्हीं के ऑफिस से ज़्यादातर किसान लोन लेते हैं। There are 25 central cooperative banks at district level, but the Bihar State Cooperative Bank functions at state level. तो जिला स्तर पर ऐसे 25 बैंक हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है खाली एक मेन बैंक। आज इतना ही रखते हैं, उसे देखेंगे कल ले लेंगे क्लास, वैसा होगा तो, अगर आप कर पाइएगा। आज थक गया, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, आज इतना ही रखते हैं।